وہ گھر کا بیرونی دروازہ آہستگی سے کھولتے ہوئے دھیرے سے اندر داخل ہوا۔ اس کا ارادہ ماں کی بے خبری میں کمرے تک جانے کا تھا، مگر ماں تو جیسے شدت سے اس کی منتظر تھی۔ آ گئے بیٹا، کیا رہا؟ وہ بے صبری سے مستفسر ہوئی۔ حالانکہ اس کے بیٹے کے چہرے پر چھائے تاثرات واضح طور پر اس کی ناکامی کا اعلان کر رہے تھے۔ وہ حسب معمول آج بھی ناکام لوٹا تھا۔ جاب کے لیے انٹرویو لینے والوں کے نزدیک ایم کام فرسٹ ڈویژن کی سند سے ایک وزیر کا سفارشی خط زیادہ اہمیت کا حامل تھا۔ اس نے نادم آنکھوں سے اپنی ماں کے جھریوں بھرے چہرے کو دیکھا، جو اس کے چہرے پر چھائی پریشانی سے اچھی طرح سمجھ گئی تھی کہ وہ ایک مرتبہ پھر ناکام رہا تھا، کیونکہ نوکری کے حصول کے لیے نہ تو تعلیم کی ضرورت تھی نہ لیاقت کی۔ پھر بھی جانے کیوں وہ ہر بار اپنے بیٹے کے منہ سے تسلی کا کوئی لفظ سننے کی خواہاں ہوتی۔ ہر بار کی طرح اس مرتبہ بھی اس کے بیٹے نے نفی میں سر ہلایا اور اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ ماں نے حسرت بھری نگاہ آسمان کی جانب اٹھائی۔ اس نگاہ میں سینکڑوں شکوے پنہاں تھے، لیکن ہونٹوں سے کوئی لفظ نکالے بغیر وہ کچن کی طرف بڑھ گئی کہ جس سے شکوہ تھا وہ دلوں کے بھید خوب جانتا تھا۔ اسے زبان سے سنانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ رات کا بچا ہوا سالن گرم کر کے اس نے پلیٹ میں ڈالا اور چھابے میں روٹیاں رکھ کر بیٹے کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ گھر میں فقط 2 کمرے تھے۔ ایک کمرے میں بوڑھے والدین اپنی جوان بیٹی کے ساتھ رہتے تھے، جبکہ دوسرا کمرہ جوان بیٹے کے تصرف میں تھا، جو ایم کام امتیازی نمبروں سے پاس کرنے کے بعد نوکری کی تلاش میں سرگرداں تھا۔ اسے ایم کام کروانے کے لیے بوڑھے والدین کو جو پاپڑ بیلنے پڑے تھے وہ خدا جانتا تھا یا اس کے والدین۔ بہن میٹرک کرنے کے بعد ایک ویمن انسٹیٹیوٹ میں سلائی کڑھائی کا کام سیکھ رہی تھی۔ گو وہ دل سے اس چیز کے حق میں نہیں تھا، مگر اس ادارے کی ساکھ کو دیکھتے ہوئے تو انو کرہن وہ چپ رہا۔ البتہ اس بات کا اس نے خصوصی خیال رکھا کہ اس کی بہن آتے جاتے وقت پردے کا اہتمام کرے۔ والد ایک پرائیویٹ فرم میں چوکیدار تھا۔ اس کی عمر کا تقاضا تو یہ تھا کہ وہ گھر میں آرام کرتا، مگر جوان بیٹی کی بے روزگاری نے ابھی تک اسے کام سے چمٹے رہنے پر مجبور کیا ہوا تھا۔ ماں نے کھانا اس کے سامنے چارپائی پر رکھا۔ پتر اتنا پریشان کیوں ہے؟ وہ بولا، کچھ نہیں ماں جی، بس یوں ہی۔ ماں نے کہا، لے کھانا کھا اور زیادہ سوچا مت کر، اللہ کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں۔ ماں نے اپنا پسندیدہ فقرہ دہرایا، مگر کثرت استعمال سے وہ فقرہ اپنی افادیت کھو چکا تھا، یا شاید وہ دیر جو اس فقرے میں مذکور تھی اس کی طوالت نے اس کا اثر سلب کر لیا تھا۔ بیٹے نے کہا، ماں، اللہ بھی شاید ان کی سنتا ہے جن کے پاس سفارشی چٹھیاں ہوتی ہیں یا پھر رشوت میں دینے کے لیے ایک تگڑی رقم۔ اس کے لہجے میں تلخی کا عنصر نمایاں تھا۔ ماں نے کہا، نہ پتر، نہ، ایسا نہیں کہتے، گناہ ہوتا ہے۔ وہ بے دلی سے کھانے کی طرف متوجہ ہو گیا۔ گناہ؟ ماں نے پوچھا، ایک بات تو بتاؤ پتر۔ وہ بولا، پوچھو ماں۔ ماں نے کہا، یہ نوکری دینے والے کتنے پیسے مانگتے ہیں؟ وہ بولا، 1,00,000 1,50,000 یا اس سے کچھ اوپر نیچے۔ ماں نے کہا، میرے پاس 1.5-2 تولے سونے کے کنگن تو پڑے ہیں، ریحانہ کے جہیز کے لیے رکھے تھے، اگر ان سے کام بن سکتا ہے تو بیچ دو، نوکری ملنے کے بعد پھر بنوا لینا۔ وہ بولا، چھوڑو ماں، اس سے پہلے میری تعلیم کے لیے بھی تمہیں اپنے سارے زیورات سے ہاتھ دھونے پڑے۔ تعلیم پر اتنا خرچہ کرنے کی بجائے وہ زیور بیچ کر میں کوئی کاروبار شروع کر لیتا تو شاید بہتر ہوتا۔ ماں نے کہا، ہے نا پگلا، وہ زیورات میرے کس کام کے تھے؟ آخر تیرے اور ریحانہ کے ہی تھے نا۔ جب نوکری مل جائے گی تو اپنی بہن کے لیے اور بنوا لینا۔ وہ کون سا کل پرسوں ڈولی بیٹھ رہی ہے، ابھی بچی ہی تو ہے۔ وہ بولا، ٹھیک ہے ماں، یہ بھی کر کے دیکھ لیتے ہیں۔ اس نے کھانے کے برتن ماں کی طرف کھسکائے اور ماں کے باہر جاتے ہی وہ آنکھیں موند کر گہری سوچوں میں ڈوب گیا۔ سوچوں کا محور باپ کا بڑھاپا، اپنی بے روزگاری اور جوان بہن کی شادی تھی۔ جیسے اس کی ماں بچی کہہ کر اسے اور اس سے زیادہ اپنے آپ کو بہلا رہی تھی، مگر ان سارے مسائل کا حل اچھی نوکری کا حصول تھا، اور جانے کب وہ نوکری کے حصول کے مختلف منصوبے بناتے بناتے نیند کی وادیوں میں کھو گیا۔ کراچی کے علاقے قائد آباد فلائی اوور کے قریب دھماکہ۔ روشنی کے شہر کراچی کو تاریک کرنے کی سازشیں بے نقاب، بھارتی ایجنسی را کی چال بازیاں، مکاریاں، ایک ایسے نوجوان کی داستان جسے حالات نے دہشت گرد بننے پر مجبور کیا۔ بدنام زمانہ ایجنسی بلیک واٹر کے غلیظ دھندے، پاکستانی ISI کے کارنامے، ملک کی خاطر قربانیاں، سنائپر اور بھگوڑا کے بعد پیش خدمت ہے ریاض عاقب کوہلر کا ایک اور شاہکار ناول دلدل۔ 2 تولے سونے کے کنگنوں کی قیمت 50,000۔ وہ ششدر رہ گیا۔
जबकि सोने के 1 तोले की कीमत 37-38 हजार रुपए है। मकरूह सूरत सुनार ने उसे समझाया, ऐसा ही है, जिस वक्त जेवर बनाया जाता है तो जोड़ के टांके लगाने के लिए दूसरी धात का इस्तेमाल होता है। दूसरा, हर पुराने जेवर को दोबारा बनाते वक्त भी सोने की हल्की सी मिकदार जाया हो जाती है। इस वजह से तुम इसे 2 तोले की बजाय 1.5 तोला समझो और 1.5 तोला भी पुराना सोना। वो बोला, मगर 1.5 तोले सोने की कीमत भी तो 50 हजार से ज्यादा बनती है। सुनार ने कहा, हाँ, लेकिन इतना मुनाफा लेना तो हमारा हक बनता है ना, और अगर तुम्हें पसंद नहीं तो किसी और के पास चले जाओ। मगर ये कोई पहली दुकान नहीं थी जिसमें वो कंगन बेचने के लिए दाखिल हुआ था। इससे पहले वो 5-6 दुकानदारों को भुगत चुका था। कोई भी 48-49 हजार से ज्यादा नहीं बढ़ा था। उसने बादले नखास्ता वो कंगन दुकानदार की तरफ बढ़ा दिए और 50 हजार रुपए जेब में डालकर दुकान से बाहर निकल आया। अब उसने कोई ऐसा बंदा ढूंढना था जिसे ये रकम देकर वो अपने लिए माकूल नौकरी का बंदोबस्त करता। किसी को रकम देकर नौकरी हासिल करना लामहला रिश्वत के जुमरे में आता है, मगर ये काम वो खुद को नौकरी का हकदार समझते हुए कर रहा था, इसलिए ज़हनी तौर पर मुतमईन था। मतलूबा मकाम तक जाने के लिए पहले उसने टैक्सी हायर करवाने की बाबत सोचा, मगर फिर इस अय्याशी का ख्याल दिल से निकाल कर वो बस स्टॉप की तरफ बढ़ गया। बहन के कंगन बेचकर हासिल होने वाली रकम यूं भी उसे जमीर पर बोझ लग रही थी। बस सवारियों से खचाखच भरी हुई थी। उसे भी पैर टिकाने को जगह मिल गई और वो सर झुकाकर अच्छी नौकरी के हुसूल के सुहाने ख्वाबों में गुम गया। बस जरा सा चलकर सवारी उतारने के लिए रुकी और दोबारा चल पड़ी। कंडक्टर सवारियों की भीड़ में बमुश्किल रास्ता बनाते हुए उन मतलूबा अफराद के करीब पहुंच रहा था जिनसे उसने किराया वसूल करना था। कंडक्टर ने उसे मुतवज्जे किया, बाबूजी किराया? वो गड़बड़ा सा गया, जरूर जरूर। और फिर गायब दिमागी की खिफ़त मिटाने के लिए उसने जल्दी से जेब में हाथ डाला कि किराया निकाल सके। जेब को खाली पाकर उसका दिल जोर से धड़का। कंगनों से हासिल शुदा रकम जेब से गायब थी। बदहवासी में उसने तमाम जेबें खंगाल डाली, रकम गायब थी। वो वहशतज़दा आवाज में चिल्लाया, मेरे पैसे किसी ने निकाल लिए हैं। कंडक्टर ने एक लम्हे के लिए उसे मशकूक नजरों से देखा। किराए की रकम बचाने वाले मुख्तलिफ किस्म के फ्रॉडियों से उसका वास्ता पड़ता रहता था, मगर उसके चेहरे के तासुरात देखकर कंडक्टर को राय बदलनी पड़ी। वो हमदर्दी से मुस्तफसिर हुआ, कितने पैसे थे? गम की शिद्दत से उससे बोला न गया। 50 हजार। उसने शक भरी नजरों से अपने दाएं बाएं खड़े मुसाफिरों की तरफ देखा। तमाम मुसाफिर उसे जेब कतरे दिखाई दे रहे थे। एक बड़े मियाँ हमदर्दी से बोले, बस रुकवाओ और किसी को बाहर न जाने दो, जेब कतरा बस में ही मौजूद होगा। कंडक्टर ने बड़े मियाँ को समझाया, जेब कतरे अपना काम करने के बाद बस में नहीं रुकते बुजुर्गो, पहली फुर्सत में नीचे उतरते हैं। वो तेजी से बोला, मगर मैं तो अभी सवार हुआ हूँ। कंडक्टर ने पूछा, तेरे सवार होने के बाद एक मर्तबा भी बस नहीं रुकी? वो बोला, सिर्फ एक मर्तबा रुकी थी। कंडक्टर ने कहा, तो बस यहाँ टाइम जाया करने की बजाय करीबी थाने चले जाओ। पुलिस वालों के पास उन उचक्कों की तफसीलात मौजूद होती हैं, अगर वो चाहें तो आसानी से उसे ढूंढ निकालेंगे। बड़े मियाँ को उससे कुछ ज्यादा ही हमदर्दी हो चली थी। बोले, मगर इससे पहले बस में मौजूद सवारियों की तलाशी ली जानी चाहिए। कंडक्टर ने नीम दिली से कहा, यूं ही कर लो, मगर ये सिर्फ वक्त का ज़िया ही होगा, इससे कोई फायदा नहीं होगा। उसे बड़े मियाँ से ज्यादा कंडक्टर की बात मुनासिब लगी और वो सर झुकाए दरवाजे की तरफ चल पड़ा। बस इस असना में रुकी हुई थी। नीचे उतरकर वो काफी देर खड़ा सोच में गुम रहा। उसे पता था कि रकम उसे वापस मिलने वाली नहीं थी। उसकी आंखों में अपनी माँ का हसरत ज़दा चेहरा और अपने बाप का कमजोर जिस्म घूम गया। उसे समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या करे। आखिर कुछ न सूझने पर उसने कंडक्टर के मशवरे पर अमल करना मुनासिब समझा और नजदीकी थाने की तरफ बढ़ गया। मोटी तोंद वाले SHO ने उसकी राम कहानी सुनकर मूंछों को ताव देते हुए पूछा, बाऊ, इतनी रकम तूने कहाँ से ली थी? वो बोला, माँ के कंगन बेचे थे, सोने के कंगन। SHO धाड़ा, अच्छा, जुआ खेलता है बेगैरत। वो हैरान रह गया, जुआ? कैसा जुआ? SHO बोला, तो क्या नशा करते हो? वो बोला, आप कैसी बातें कर रहे हैं सर, मेरा जुए या नशे से क्या ताल्लुक? थानेदार ने मानी खेज अंदाज में सर हिलाया, इसका मतलब है औरत का शौक है तुझे? वो बोला, नहीं सर। SHO बोला, फिर माँ के कंगन क्यों बेचे हैं? इस तरह के काम तो नशई, जुआरी या औरत के शौकीन करते हैं। वो बोला, माँ ने खुद मेरे हवाले किए थे क्योंकि घर में पैसों की जरूरत थी। SHO ने कहा, अच्छा
ठीक है, अपना पता नोट करवाते जाओ, जैसे ही रकम के बारे में इत्तला मिली तुझे मुत्तला कर दिया जाएगा। पुलिस वालों की अजली बेहिसी का मुजाहरा था और वो नीम दिली से अपना एड्रेस नोट करवा कर बाहर आ गया। उसकी उम्र की पूंजी लुट गई थी। ये 50,000 नहीं थे, उसकी माँ की आरजुएं, बाप की हसरतें और बहन की जरूरतें थीं। जेब काटने वाले को शायद पता ही न चला हो कि वो कितना बड़ा जुल्म एक खानदान पर ढा चुका था। वो इन्हीं सोचों में गुम बेसमत चलता रहा, यहाँ तक कि बेख्याली में घर के दरवाजे तक आ पहुंचा। शायद लाशौरी तौर पर उसे हौसले, तसल्ली और ढारस की जरूरत थी। कुछ देर दरवाजे पर रुक कर वो पीछे मुड़ा। इस मर्तबा उसका रुख अपने देरीना दोस्त शकील के घर की तरफ था। कोशिश के बावजूद वो अपने घर में दाखिल न हो सका। शकील का घर भी इसी मोहल्ले में था। दस्तक के जवाब में उसने ही दरवाजा खोला। अरे डॉक्टर इस्माइल शाह गाजी साहब, आज किधर रास्ता भूल पड़े? वो मैट्रिक तक क्लास फेलो रह चुके थे और मैट्रिक तक उसका इरादा डॉक्टर बनने का था। गो बाद में अखराजात की कमी की वजह से उसने कॉमर्स में दाखिला ले लिया था, लेकिन चंद करीबी दोस्त आज तक उसे डॉक्टर कहकर ही बुलाते थे। शकील का पुरजोश इस्तकबाल भी उसे जहनी तनाव से बाहर न निकाल सका। डॉक्टर साहब खैर तो है? परेशान नजर आ रहे हो। वो बोला खैर। शकील ने कहा, यार तू तो सचमुच परेशान है, अंदर आओ, इत्मीनान से बैठकर बात करते हैं। वो सर झुकाए घर के अंदर दाखिल हो गया। शकील ने पूछा, अब बताओ क्या बात है? वो तलखी से बोला, यार शकील, समझ में नहीं आती हम गरीबों की पैदाइश का मकसद क्या है। बचपन महरूमियों में गुजरता है, जवानी तलखियों में और बुढ़ापा अपनी औलाद को इन्हीं महरूमियों में मुब्तला देखने में, जिससे बचपन में हम गुजर चुके होते हैं। शकील बोला, डॉक्टर साहब आज तो फिर बुकरात बने फिर रहे हो। वो बोला, शकील ये हकीकत है, हमारे माशरे में गरीब सिर्फ जलने, कुड़ने और सिसकने के लिए पैदा होते हैं। शकील बोला, शाह साहब असल बात बताओ। माशरती नाहमवारी की ये लेक्चर इससे पहले कई मर्तबा सुन चुका हूँ। वो बोला, असल बात ये है कि एमकॉम किए हुए 2 साल होने को हैं और अब तक बेरोजगार हूँ, क्योंकि ना तो मेरे पास रिश्वत में देने के लिए पैसे हैं, ना ही कोई तगड़ी सिफारिश। आज अम्मी जान के कंगन बेच दिए ताकि किसी को हड्डी डालकर अपना हक हासिल कर सकूं, मगर जेब कट गई। अब समझ नहीं आ रही कि किस मुंह से घर जाऊं। अम्मी शायद अब तक मुसल्ले पर बैठी अपने बेटे की कामयाब वापसी के लिए दुआ गो हों। हालांकि उन्हें ये पता नहीं कि गरीबों की दुआएं सिर्फ सब्र का फरिश्ता वसूल करता है और बदले में सब्र की एक नई आजमाइश अता फरमा देता है। शकील बोला, देखो इस्माइल, इससे पहले भी मैं कई मर्तबा ये नसीहत कर चुका हूँ कि अगर अपनी तालीम के मुताबिक नौकरी ढूंढोगे तो कभी कामयाब नहीं हो सकोगे। मैंने मैट्रिक के बाद जब तालीम को खैरबाद कहा था तो तुम्हें उस वक्त यही मशवरा दिया कि कोई मजदूरी वगैरह करते हैं, मगर तुम न माने। अब मुझे देखो, 6-7 साल हो गए हैं मजदूरी करते। अल्हम्दुलिल्लाह दाल रोटी चल रही है और अब्बू जान भी बुढ़ापे के दिन आराम सुकून से गुजार रहे हैं, जबकि तुम्हारे वालिद साहब आज इस उम्र में भी चौकीदारी कर रहे हैं। तालीम के हुसूल के लिए जो वक्त खर्च हुआ सो हुआ, अब तो अपने बूढ़े बाप के हाल पर रहम करो और जब तक कोई ढंग की नौकरी नहीं मिलती मेहनत मजदूरी कर लो। इससे ना तो तेरी शान में कमी आएगी और ना ही एमकॉम की डिग्री पर कोई हर्फ। वो बोला, यार वो बात की बात है, आज के मसले का क्या हल करूं? वो बोला, बहुत ही आसान हल है, घर जाकर बता दो नौकरी मिल गई है और कल से मेरे साथ स्टील मिल में चलो। काम सख्त है मगर ओवर टाइम लगाकर अच्छी दिहाड़ी बन जाती है। इस्माइल नीम रजामंद हो गया था। बोला, मगर मैंने ये काम कभी नहीं किया। शकील ने कहा, ये कोई टेक्निकल काम तो नहीं है, लोहे की लोडिंग अनलोडिंग करनी है। माशाल्लाह अच्छी सेहत के मालिक हो। गो इब्तिदा में ये काम सख्त लगेगा लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आदी हो जाओगे। मुझे देख लो, मेरे लिए आज ये रूटीन का काम है। कुछ देर गहरी सोच में गुम रहने के बाद वो आहिस्ता से मुस्तफसिर हुआ। सुबह किस टाइम जाते हो? शकील खुश हो गया, ये हुई ना बात। सुबह इंशाल्लाह 7:30 बजे घर से निकलेंगे, 8 बजे तक वहाँ पहुँच जाएंगे और फिक्र मत करो, खुदा ने चाहा तो तुम्हें नौकरी भी जल्द मिल जाएगी। वो शायर कहता है ना, नजूमी क्यों हमारी बदनसीबी बीच लाते हो, पड़े हाथों में जब छाले बदल जाएंगी रेखाएं। नौकरी मिलने की खुशखबरी सुनते ही उसकी माँ शुक्राने के नफल पढ़ने के लिए मुसल्ले की तरफ बढ़ गई। वालिद का चेहरा भी खुशी से दमकने लगा था। उसका दिल वालिदैन को खुश देखकर मजीद दुखी हो गया। उसने दुख से सोचा, अगर इनको पता चल जाए कि मैं झूठ बोल रहा हूँ तो न जाने इन पर क्या बीते। खाना खाकर वो झूठ मूठ सोने के लिए लेट गया। हालांकि नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। उसने जिंदगी में कभी मजदूरी नहीं की थी। नामालूम एकदम इतनी सख्त मजदूरी उसका जिस्म बर्दाश्त कर भी पाता या नहीं, मगर एक बात तय थी कि उसके बगैर चारा कोई नहीं था। जब तक कोई अच्छी नौकरी न मिल जाती उसे ये मुशक्कत बर्दाश्त करना पड़ती। कमरे से बाहर वालिदैन अपने बेटे की हालत से बेखबर मुस्तकबिल के मंसूबे बनाने में मसरूफ थे। सुगरा खातून बोली, मैं तो सबसे पहले अपनी रेहाना का जहेज बनाऊंगी।
बाप ने कहा वो भी बन जाएगा नेक बख्त, मगर इससे पहले इस्माइल पुत्र के लिए कोई लड़की ढूंढो। माशाल्लाह अब बरसरे रोजगार है। सुगरा खातून ने शौहर की तरफ पैसे बढ़ाए। अच्छा ये बातें तो होती रहेंगी, तुम जरा इन पैसों की शीरीनी पकड़ लाओ ताकि मोहल्ले के बच्चों में बांट दें। और वो पैसे पकड़कर सर हिलाता हुआ बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। अगले रोज 2-3 घंटे काम करने के बाद ही उसने हिम्मत हार दी। वो परेशानी से बोला, मुझसे ये काम नहीं हो सकेगा। शकील ने कहा, यार शर्म करो, अपनी जान देखो, मुझसे तो दुगने हो, इतनी जल्दी हिम्मत हार दी। वो बोला, बात हिम्मत हारने की नहीं है, आज पहले दिन ये हालत है तो आगे क्या होगा। शकील ने उसे तसल्ली दी, कुछ भी नहीं होगा, बस चंद दिन की बात है, उसके बाद तुम्हें ये काम महसूस ही नहीं होगा। शकील के हिम्मत बंधाने पर वो दोबारा काम में जुट गया और फिर असर तक वक्फे से शकील की तरगीब पर वो काम में जुटा रहा। उसकी वजह से शकील ने भी टाइम से पहले छुट्टी कर ली। उसके कपड़े पसीने में शराबोर थे। दोनों ने नहा कर कपड़े बदले, काम के कपड़े वहीं छोड़े और घर की तरफ चल पड़े। शकील ने कहा, डॉक्टर साहब चंद दिन तकलीफ होगी, मगर उसके बाद इंशाल्लाह तुम्हारे लिए ये रूटीन का काम होगा और इस दौरान तुम जॉब से मुताल्लिक वैकेंसियों पर भी नजर रखो, शायद अल्लाह कोई सबब पैदा कर दे। इस्माइल ने कहा, यार मुझसे तो सही तरीके से चला भी नहीं जाता और आज तो पहला दिन था, आगे पता नहीं। शकील ने कहा, बकवास न करो, बस पहला हफ्ता तकलीफ का है, उसके बाद। इस्माइल ने कता कलामी की, हाँ उसके बाद मिल मालिक डबल बेड लगवा देगा कि घर से आकर इस पर सो जाया करो। शकील ने कहा, बेड तो खैर मालिक नहीं लगवाने वाला, अलबत्ता ये मैं दावे से कहता हूँ कि तुम सिर्फ 2 हफ्ते की मुशक्कत बर्दाश्त कर लो, उसके बाद भी तुम्हें ये काम दुश्वार लगे तो मेरा नाम बदल देना। इस मर्तबा उसने जवाब देने की बजाय सर झटका और रोजाना की दिहाड़ी को जोड़कर माहाना तनख्वाह का हिसाब लगाने लगा। ये अंदाजा करके उसे खुशी हुई थी कि वो ओवर टाइम लगाकर अच्छी खासी रकम माहाना कमा सकता था। काम बेशक दुश्वार था, मगर शकील भी तो काफी अरसे से ये काम कर रहा था और शकील को देखकर उसकी ढारस बंध गई। बाकी रास्ते वो खामोश रहे। गली के मोड़ पर शकील ने उसे सलाम कहकर अपनी राह ली और वो अपने घर की तरफ मुड़ गया। घर में दाखिल होते ही उसकी नजर चारपाई पर लेटे बाप पर पड़ी। तकिया दोहरा करके सर के नीचे रख कर वो टांग पर टांग चढ़ाए रेडियो सुन रहा था। बेटे की नौकरी की खबर सुनते ही उसने चौकीदारी छोड़ने में देर नहीं लगाई थी। अपने बाप को यूं सुकून में देखकर उसे दिली तस्कीन महसूस हुई। सारे दिन की थकन जैसे लम्हों में काफूर हो गई। उसकी माँ और बहन बावर्ची खाने में घुसी रात का खाना तैयार कर रही थी। अस्सलाम वालेकुम अब्बू जान। वो अपने बाप को सलाम कहकर अपने कमरे की जानिब बढ़ गया। वालेकुम अस्सलाम, जीते रहो पुत्र। कमरे में दाखिल होते ही उसकी माँ भी किचन में काम अधूरा छोड़कर उसके पीछे चली आई। मेरा शहजादा पुत्र आ गया। माँ ने उसके माथे पर बोसा देकर पूछा, चाय लाऊं पुत्र? इस्माइल बोला, जी अम्मी, अगर हो सके तो। माँ ने कहा, अभी लाई पुत्र। वो जिस तेजी से आई थी उसी रफ्तार से बाहर निकल गई। रात का खाना खाकर वो सोने के लिए लेट गया, लेकिन इतनी ज्यादा थकन के बावजूद वो सुकून से सो न सका। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। इंशाल्लाह आपसे अगली किस्त में मुलाकात होगी। तब तक अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।